Guys, we will be doing this session. I think there are a few more, like there's some more added information that I personally feel must be shared with you, especially with the reference to the prelims, upcoming prelims examination. Right, so we will be talking about some of the few more places that have been in news, some of the new data, okay, that can be relevant for your examination. So the first thing that we are going to start up with is an addition, or you can say it's a data that has been provided by the Zoological Society of India. And guys, it's an annual data regarding, or you can say pertaining to, the total number of plants and animals in India. यानी कि हिंदुस्तान में, भारत में, what are the total number of plants and animals? This data was released last year, 1st of July 2024 by the Zoological Survey of India. That means the inputs are suggested by the ZSI, and it was released by the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so what exactly does the data says? So please, number one, first and foremost, write down, India has added a total of 641 new species of animals and 339 new species of plants. Okay, in fact, one of the most important things pertaining to both this data, it can be, there has been a new species of a turmeric. Okay, a species of turmeric has been seen in Manipur. We'll give you the details. Along with that, a new species of bat has also been included here. Okay, bat in which was found in Karnataka. Okay, has been found in Karnataka. You can write down amongst the newly found plants, amongst the newly found plant, new species of turmeric named curcuma coccigenes. Okay, curcuma coccigenes was found in Manipur. Along with that, a bat species named Miniopterus, Miniopetrus, was found in the Kodagu district of Manipur. Kodagu district of Manipur. One more important thing, these newly found plants, okay, so there was a sequence. Most number of these newly found plants, firstly, they were seen in West Bengal, followed by Kerala, and at last it was the state of Uttarakhand. So you can please write down, most of these discoveries, animal discoveries and plant discoveries, most of this animal and plant discoveries saw
ये प्लांट के रेफरेंस में है गाइस. सो वेस्ट बंगाल ऑन द फर्स्ट, फॉलोड बाय केरला and Uttarakhand, Kerala and Uttarakhand. Whereas for animals, it was Kerala, West Bengal, and Tamil Nadu, and Tamil Nadu, and Tamil Nadu. One more thing, please. Highest species, highest endemism has been reported in. Highest endemism has been reported in the Western Ghats tract. The Western Ghats tract that includes Karnataka, Kerala, and parts of Tamil Nadu. Whereas the Andaman Nicobar Islands, have also shown a higher level of endemism. Okay, second. Now guys, this one is with reference to a biodiversity species. Okay, very important. Okay, it's a big species. That's why we are taking this thing into consideration. This is not with reference to India, but you can say the reference definitely is to be checked in India as well. So when I'm talking about Indonesia, yahan par we have seen a specific type of elephant, unique features named as the Borneo elephant. Okay, now the Borneo elephant prominently found in the Borneo Islands. Okay, as you all know, Indonesia primarily has 4 important islands. You have the Celebes, you have the Java, you have the Sumatra, and you have the Borneo Islands, right? In fact, Kalimantan, the new capital of Indonesia, okay, that too is situated in the, I think, in the Borneo Island, right? So the Borneo elephant has been declared endangered by the IUCN. Okay, so this is the next information, please. The Borneo elephant which is found in the Borneo elephant which is found in the Borneo and Kalimantan region, found in Borneo and Kalimantan region of Indonesia, has been declared as endangered, by the IUCN, by the IUCN. By the IUCN. You can write down. The Borneo elephant is distinctive. The Borneo elephant is distinctive in both appearance. The Borneo elephant is distinctive in both appearance and genetics.
and is amongst the three elephant species, and is amongst the three elephant species found in India, or found in the world, found in the world, found in the world. Okay, found in the world. The other two elephants are the African elephant, the forest elephants, right? Next. Okay. Now recently guys, what happened? Third information है, recently इंडिया से और साउथ एशिया के बाकी 6 कंट्रीज से a group of scientists, they came together and they have come up with the claim that India houses most number of alien invasive species. Houses most number of alien invasive species. सबसे ज्यादा alien invasive species की अगर हम लोग बात करते हैं साउथ एशियन रीजन में, तो यहां पर हमको इंडिया का रेफरेंस देखने को मिलता है. Now guys, if you remember, I have already discussed how exactly the alien invasive species are being dealt. Okay, we have seen how the Central Board of Indirect Taxes along with the Plant Genetic Bureau, they all come up with, and there is a provision of phytosanitary certificate that has been provided to all those material or all those imports which have come from outside. Also guys, please don't forget, when we are talking about the phytosanitary certificate, that produce or that crop that does not have a phytosanitary certificate, it is dealt with a fumigation test here in India. So if the results are satisfactory under the fumigatory test, we give a go ahead to that produce or to that agricultural produce that is available for us, right? So ये थोड़ा सा important बन जाता है इंडिया के context में. You can write down this thing. India recently in a group of 7 countries, of South Asia, hosts the most number of invasive alien species and has right now and has 185 such plant species, followed by Bhutan and Sri Lanka. Full stop. Next line. To control the alien invasive species, the target 6 of Kunming, Montreal Global Biodiversity Framework
Kunming Montreal Global Biodiversity Framework also plays a very important role. And it speaks of reducing the impact of invasive alien species on the biodiversity framework fund, on the biodiversity and the ecosystem Okay, next. Fine. Okay, guys, there is one more important report, that is the World Wildlife Crime Report 2024. World Wildlife Crime Report 2024. Okay, crime against the wildlife. It is released by United Nations Office on Drugs and Crime. Okay, on drugs and crime. Then you have some more very important references that are given here. Number one, what exactly are the most important species of either plants or animals that have been affected the most? So you can write down under the report, the rhino and the cedar, are the most affected animal and plant species. Affected by the global illegal wildlife trade. Almost 29% of illegal trade, almost 29% of illegal trade constituted rhino horns, followed by pangolin scales, that contributed 28%, and elephant tusk that contributed at least 15%. That contributed at least 15%. Some of the important takeaways from the report.
Some of the important takeaways from the report. Number one, a high need of addressing the global crime, against the illegal wildlife trade. Illegal wildlife trade. Okay, next. Now, as we all know, International Big Cat Alliance is an initiative that has been launched by India, and it involves a very prominent species that is found in India as well, that is snow leopard. Now, as per the most recent census that we have conducted, we have 718 snow leopards, okay, that are located at various high altitude places. Recently, there has been a sighting of 4 snow leopards at the Kishtwar National Park in Jammu and Kashmir. There has been a sighting of the snow leopard. So it becomes very important as pertaining to the IBCA, International Big Cat Alliance, right? So you can write down the Kishtwar National Park, the Kishtwar High Altitude National Park, you can write down. The Kishtwar High Altitude National Park has been recorded with the presence of 4 snow leopards, which is a flagship species, and an apex predator, of the high altitude Himalayan region, दो चीजें और है यार यहाँ पे, ये जो किश्तवार हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क जिसके लिए बहुत पॉपुलर है, पहला आपके पास आ जाता है साइबेरियन आइबेक्स और दूसरा हिमालयन मस्क डियर. सो यू कैन प्लीज राइट डाउन, अपार्ट फ्रॉम द स्नो लेपर्ड्स, this national park is home to Siberian ibex and the Himalayan musk deer, Okay. Okay. Now, guys,
there was one very important lake that was in news, the Pajaraj lake in Gujarat. Now, last year there was an incident where a few, you can say, magar, that is saline crocodiles, okay, along with a few species of turtles, they died, okay. So with that particular reference, the lake Pajaraj, it came into news. So we'll be talking about what exactly this lake is, what was the reason, etc. Okay. So please. Right. So first thing, guys, apart from being called as Lake Pajaraj, sometimes it is also by the locals, it is referred as Pajias as well. Okay. So लिख लीजिए, the locals refer this lake as Pajias, and it is a home to various species of birds, crocodile and turtles, Number two, it is a wetland of national importance. Wetland of national importance. Exactly located in the Khera district. Between the Sabarmati and the Mahi River. Sabarmati and Mahi River. One last thing. This wetland also attracts a large number of migratory species of birds. Next information is India ratifies the BBNJ, also known as the High Seas Treaty. Okay. So what is BBNJ? BBNJ is biodiversity beyond national jurisdiction. The idea, we have already discussed it before. What exactly is it? Biodiversity beyond national jurisdiction. So guys, when I'm talking about the BBNJ, what exactly it says, it primarily speaks about protection of the biodiversity outside the national jurisdiction. Now we all are aware, when we are talking about the national jurisdiction with reference to the marine area or in the ocean, you have two aspects that is to be understood.
Firstly, the first 22-23 kilometers are referred as what? Territorial waters. That means any kind of movement within this water limit, it definitely needs a permission from the government of India. Okay? यहाँ पर कोस्ट गार्ड, नेवी, ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं. After the territorial waters, okay, after the territorial waters, the next 200 kilometers, they come under what? They come under the EEZ, that is exclusive economic zone. Activities such as drilling, mining, okay, exploration, sea exploration, naval exploration, exercises, all of these things, it would come under what? It would come under exclusive economic zone. And once the exclusive economic zone limit is over, then you come to this particular region that you name as the high seas. We have already discussed, we have a global agenda in front of us that is known as the 30 by 30 initiative. The 30 by 30 initiative that is required to be achieved by the end of 2030. And here we are talking about 30% of degraded land to be restored back to normal, and 30% of the ocean area is to be what? Is to be taken into consideration and kept protected, right? इसी के रेफरेंस में इस साल COP16, इस साल बोल रहा हूं, लास्ट ईयर COP16 में there was an agreement that was EBSMAs, primarily with reference to what? The marine areas. What exactly is the full form of EPSMA? How would you define EPSMA, guys? Ecologically, biologically significant marine area, right? We have also seen the total percentage, 17%, approximately 17% of the land has been covered and 8% of the ocean area has been covered. So this EPSMA is definitely going to play a great important role in identifying the area that actually needs protection under the 30 by 30 initiative. And in that very regard, the High Seas Treaty is going to play a very important role. So now, as we all know, India has ratified the High Seas Treaty. It ratified it September 2024, when Prime Minister was on an official visit to the United States of America. So at that time, this treaty was ratified. This treaty is ensured by, or you can say what framework this treaty follows. This treaty follows the framework provided by the UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Seas. Okay, you might have heard of International Seabed Authority, works under the same domain of UNCLOS. Okay, so इसको थोड़ा सा लिख लो please. Please write down. India has ratified the High Seas Treaty. India has ratified the High Seas Treaty and is one of the initial members to do so, The signing and ratification करके लिखो. The signing and ratification happened in September 2024. And under this treaty, all the countries who have ratified, and in this treaty, all the countries who have ratified, would save and conserve 30%, would save and conserve 30% area after their national jurisdiction, by protecting
after their national jurisdiction by protecting their biodiversity, and causing minimal damage, minimal to zero, in the region. The treaty shall have another objective. That is of capacity building, and transferring of marine technology, to developing countries. Full stop. Please write down. Just like any other international treaty, the High Seas Treaty would come into force. Only when a certain minimum number of countries would ratify it. In this case, the number is 60 countries. And once these 60 countries have ratified it, it would become a law. In 120 days. 120 days. Okay. Next. एक रिपोर्ट आई है बेटा डाउन टू अर्थ से, राइट, और वो स्टडी है, वन ऑफ द रीसेंट स्टडीज है, यहां पे ये बता रहा है कि भाई जो थार डेजर्ट का रीजन है, ओके, इन द लास्ट 2 decades हैज ऑब्जर्व्ड an increase in the green cover by at least 38%. यानी कि जो थार डेजर्ट का हिस्सा है 38% ग्रीनरी वहां पर, ग्रीन कवर वहां पर ऐड हुआ है इन द लास्ट 2 decades. ओके, सो थोड़ा सा इसके बारे में देख लो, समझ लो क्या है. सो यू कैन प्लीज राइट डाउन ग्रीनरी इन थार डेजर्ट, या increased green cover in Thar Desert. Increased green cover in Thar Desert.
increased green cover in Thar Desert. So you can please write down, according to a new study, the Thar Desert in India, has experienced a 38% annual increase, a 38% annual increase in greenery over the last 2 decades. Now, what are the primary reasons that have been accounted to it? Some reports say increased monsoonal rainfalls. दूसरा कहता है the agricultural expansion. Okay, so you can please write down, the increase in the green cover can be accounted to, can be accounted to monsoonal rainfall, and agricultural expansion. Can be accounted to increased monsoonal rainfall, and agricultural expansion. Okay. Okay, next. रिवर गंगा में एक टर्टल की स्पीशीज थी जो पहली पाई जाती थी 30 years ago. Later on, this species was declared critically endangered. और कहीं ना कहीं यहां पे हम लोगों ने इसका XC2 कंजर्वेशन जो है प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना शुरू किया. नाउ आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट 30 years, ये जो टर्टल की स्पीशीज है इसको हम लोगों ने दोबारा से रिवर गंगा में इंट्रोड्यूस करवाया है. सो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए. द रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, द रेड क्राउन्ड roofed turtle, the red crowned roofed turtle. So you can please write down, after a duration of 20 years, after a duration of 30 years, after a duration of 30 years, 20 red-crowned roofed turtles were successfully reintroduced in the river Ganga. The species
locally known as Batagar Kachua, Batagar Kachua is amongst Asia's 50 most endangered 50 most endangered 50 most endangered freshwater species. अच्छा, ये जितने भी टर्टल्स हैं ना, ऑल दीज टर्टल्स, इन सबके साथ एक सोनिक ट्रांसमीटर भी हम लोगों ने ऐड किया है। इनके सबके शरीर में एक सोनिक ट्रांसमीटर हम लोगों ने जोड़ा हुआ है। क्यों जोड़ा हुआ है? सो दैट वी कैन मॉनिटर द मूवमेंट, और इनकेस अगर कोई थ्रेट है तो हम उसको भी आइडेंटिफाई वहां पर कर सकें। ठीक है, सो प्लीज साइड में थोड़ा सा लिख लो, these species of turtles were fitted with sonic transmitters, in order to monitor their movement or any threat, okay. Guys, if you have any queries ना, please आप लोग पूछते हुए चलो. If you guys want to ask any specific thing, okay, which you people think that I might have missed, so please, whatever your queries are ना, please keep on posting those queries as well. आप लोग अपना भी बताते रहो, so that I can give you a complete information regarding that. बताते चलो. You can write down, beta. Please put your queries in the chats. Okay, Vaibhav. Fine. See, Vaibhav, red and red plus, the difference was simple. Initially, Vaibhav, when the RED initiative was introduced in the year 2008, it focused only on conservation of forests. और यहां पर simple सी बात की गई कि भाई our objective is to protect the biodiversity, increase the forest cover, increase the tree cover, and all of these things. There were no provisions of finances that was introduced or the monetary benefits that were introduced. Later on, when the RED Plus initiative was introduced, it directly spoke about providing some benefits, providing some financial advantages. So once this provision of financial advantages got added, then people started showing interest. People started taking interest that, okay, now we are getting some monetary benefits. Isliye, if you remember one of the questions that we have discussed, conservation of biodiversity, वो तो पूरा का पूरा आपका objective था ही. But one of the most important things that was present there was poverty reduction. क्यों? क्योंकि the moment you will have some financial aid, some monetary benefits, people will show some interest. Okay, ऐसा बोल दिया कि इतने एरिया में अगर आपने 1000 पेड़ लगा दिए तो we would be giving you this much amount of funds. So इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो रेड प्लस इनिशिएटिव आया, that came up with the financial angle.
whereas the red initiative had just one thing, that is conservation of the biodiversity and the objective, that is reducing emission from forest degradation, ठीक है, deforestation and land degradation, ठीक है. Next क्या है, please show me the charts. Okay, Vaibhav, okay. USA is neither a signatory to the Nagoya Protocol nor a CBD. Nor a CBD means, see, USA hasn't ratified any. In fact, Shiva, if you have not forgotten, I told you when the Earth Summit 1992 happened, it was United States of America, it was Vietnam, it was Singapore, and it was Kiribati, the 4 countries that said that we won't either be signing or ratifying this particular treaty. So obviously CBD was formed under what initiative? It was formed under the initiative of Earth Summit. So when they haven't ratified, so how come they can become a party to the CBD? Are we clear, Shiva? Yes. Okay. Okay. Please post some of your queries. क्या है? Okay. क्या लिखा हुआ है? Okay, what is the use of pangolin scales? बेटा pangolin scales वैभव इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं यार. मैंने सुना है एस्थमा में बहुत मतलब काम आता है, एस्थमा में, और कुछ कुछ तरीके के कैंसर जो है ना उसमें भी काम आता है, उसमें काफी ज्यादा वो होता है. इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन यूज ऑन वर्ल्ड लेवल. ओके, ठीक है ऋषिकेश, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन. फाइन ऋषिकेश, यू कैन फोकस ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेसेस. या देखो ऐसा ग्लोबली ना एक एक चीज के ऊपर अगर आप वो देख रहे हो तो यहां पर आपके पास रेगुलर बेसिस पर, फॉर एग्जांपल यू हैव द अमेज़न, एक लेक आपके पास है नाइट्रॉन, एक लेक आया आपके पास लेक चैड तंजानिया के आसपास. ओके, देन यू हैव द फॉरेस्ट फायर ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस. ठीक है, तो यार इस तरीके से है बेटा. बाकी यार जो जो रेफरेंसेस आ रहे हैं वो तो मैं बताते चल ही रहा हूं मैं, राइट. बाकी देखते हैं और कौन कौन सी जगह के रेफरेंस में मैं आपको बता सकता हूं, प्लेसेस. एनीथिंग एल्स गाइस, प्लीज कीप ऑन आस्किंग. प्लीज कीप ऑन आस्किंग गाइस. अरे बहुत कुछ है यार एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी में. कम ऑन पीपल, प्लीज आस्क. Okay, now one more RVS. एक और चीज है आपके पास, चीतर इंट्रोडक्शन को लेकर के नई जगह की बात हुई है ना, पता है कि नहीं है? आरबीएस कन्वेंशन. आरबीएस कन्वेंशन क्या बेटा? बस उन पे डिस्कस इट. ओके, रॉटरडैम कन्वेंशन. ओके ओके ओके, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन. ठीक है ठीक है. ओके वैभव, देयर वाज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग बेंजीन पोल्यूशन. कैन यू प्लीज डिस्कस इट? बेंजीन पोल्यूशन. ओके फाइन, देख लेते हैं बेटा एक बार.
फाइन, सबसे पहले यार थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। द रॉटरडैम कन्वेंशन और जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, दोनों के रेफरेंसेस में बात करते हैं। रॉटरडैम कन्वेंशन प्राइमरली बात करता है ट्रेड किसका, हजार्डस केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को लेकर के। ओके, सो व्हाट यू कैन पुट द हेडिंग एज, प्लीज पुट द हेडिंग रॉटरडैम कन्वेंशन on hazardous chemicals and pesticides, hazardous chemicals and pesticides. Hazardous chemicals and pesticides. फाइन, सो यहां पर एक टर्म आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज पीआईसी, दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पीआईसी, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सो एग्जैक्टली में पीआईसी का जो रेफरेंस है वो है क्या यार, ठीक है। अब पीआईसी का मतलब यह है कि भाई प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि किसी भी तरीके का हजार्डस सब्सटेंस, if it is actually being sent to one particular place, तो यहां पर it would be responsibility of the sending country to tell them कि भाई ये चीजें आ रही हैं। और जब तक वो जो दूसरा कंट्री है, जब तक इसमें अपनी कंसेंट नहीं प्रोवाइड करवाता है कि भाई वी आर नॉट रेडी और वी डू नॉट एक्सेप्ट और वी डू नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर हजार्डस मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू आवर कंट्री, तब तक आप उसको दूसरे कंट्री में भेज नहीं सकते हैं। तो अभी क्या होता है, रिसेंटली कई सारे एडिशंस होते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स हैं, हजार्डस केमिकल्स हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर तो दोनों कंट्रीज के बीच में पीआईसी साइंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ द पीआईसी इज नॉट साइंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज, देन इट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडिंग कंट्री कि भाई हमें इसको नहीं भेजना है, बिकॉज वी हैवंट गॉट द रिक्वायर्ड और द कंसेंट दैट इज नेसेसरी। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, दो चीजें थी। द रॉटरडैम कन्वेंशन प्राइमरली स्पीक्स ऑन, द रॉटरडैम कन्वेंशन प्राइमरली स्पीक्स ऑन the PIC mechanism, PIC mechanism, and is an international treaty, and it is an international treaty, and is an international treaty that is designed to facilitate, informed decision making by countries, with regards to trade, in hazardous chemicals, It is a legally binding agreement. With India ratifying and accepting the provisions of the treaty, in 2006. PIC का रेफरेंस ले लो. What is PIC? PIC procedure is a mechanism. PIC procedure is a mechanism
PIC procedure is a mechanism for formally obtaining the decisions of importing parties on their willingness to receive future shipments of hazardous chemicals. ओके एक और है यहां पर, पहले तो हजारस केमिकल्स के रेफरेंस में बात हो रही है, देन यू हैव द स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि बात करती है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रेफरेंस में. So you can write sideways. The Stockholm Convention is a global treaty to protect the human health and the environment from the persistent organic pollutants. क्या होता क्या है यार guys? What is persistent organic pollutants? What are persistent organic pollutants, guys? Guys, POPs. Yeah, exactly. POPs, beta, persistent. यानी कि they are those pollutants that continue to stay in the atmosphere, continue to stay in the environment for a very long duration of time. Okay, so you can write down sideways. POPs are those pollutants. That stay. POPs are those pollutants that stay in the environment for long periods of time, and are extremely toxic to humans and the wildlife Because India has ratified the Stockholm Convention in 2006. So far, the Stockholm Convention has listed over 31 chemicals. 31 chemicals. Over 31 chemicals, and is working in the same direction. इसी स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ एक टर्म और आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है डर्टी डजन. अब डर्टी डजन बेसिकली ये ऐसे 12 और पीओपीज का नाम है. ग्रुप ऑफ 12 POPs
persistent organic pollutants जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं एनवायरमेंट को, वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को. So you can please write down the dirty dozen refers to the initial list of 12 persistent organic pollutants that were identified by the Stockholm Convention in 2001. These initial chemicals are aldrin, aldrin, chloridane, chlordane, chloridane, DDT, heptachlor, 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 dieldrin, 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 toxaphene, 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 Mirex, 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 hexachlorobenzene, heptachlor, 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 PCB, polychlorinated biphenyl, PCP, sorry, polychlorinated biphenyls. Next is PC dioxins, PC dioxin and PC furans, PC polychlorinated furans, FURANS. Okay, fine. Okay, please. Now, Vaibhav says there was a question. Okay, but देख लेते हैं क्या question है Vaibhav. Vaibhav, this question was on the first day or on the second day?
चलो ठीक है, I'll try to find out what question was that. बाकी लोग भी अपना प्लीज क्वेरीज पोस्ट करते चलो यार. If you have anything to ask, please. Come on, guys. Anything. ओके. डिस्कस नहीं किया फिर कैसे आ रहा है वैभव? क्वेश्चन कैसे आ गया? कार्ब फिक्स. यार, see, this initiative that it has, like, it got started in Iceland. CarbFix, like basically carbon capture and storage facilities, they are being developed. And where exactly are you planning to store this entire carbon dioxide that you're planning to capture? ये सारा का सारा basalt rocks में होगा यार. Okay, but Shiva, this is in the very initial stages यार. अभी इसके बारे में ना बहुत ज्यादा I don't think we have any such reference here. तो अभी it's quite in initial stages. तो बाकी I don't think it's very much relatable here. Idea is very simple: to fix, to capture, to store the carbon dioxide in the basalt rocks. But वो बहुत early stages में अभी Iceland has only performed, so there is not much information regarding that with me. ठीक है? Okay. बाकी लोग पूछे. क्वेश्चन को करिए. Okay. The following are these. तो वैभव, इसमें क्या बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या इसमें इसमें क्या रेफरेंस है? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मतलब इट्स जनरल क्वेश्चन. बोलिए. बेंजीन पोल्यूशन के रेफरेंस में देखना है या कुछ ऐसा? बताइए. बेंजीन पोल्यूशन के रेफरेंस में आई थिंक ऑल 5 शुड बी करेक्ट. ओके. फाइन. सो सोर्सेज लिख लेते हैं ना. व्हाट आर द सोर्सेज? सो देखो, द सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं. अब नेचुरल सोर्सेज में तो भाई आपके पास फॉरेस्ट फायर कैन बी अ वेरी गुड. ओके. आंसर इज 1, 2 एंड 3. फॉरेस्ट फायर बिल्कुल सही बात है. ठीक है. यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर. यूजिंग वार्निश्ड. वार्निश्ड क्या होता है बेटा? व्हाट इज वार्निश्ड वुडन फर्नीचर? वार्निश्ड क्या होता है इसका? आई हैव हर्ड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. वार्निश्ड वाज अ PYQ. ओके. एक बार लेट मी चेक दिस क्वेश्चन. ठीक है. फाइन. वहां पे जो रेफरेंसेस है, एक तो फॉरेस्ट फायर, तो ऑब्वियसली वुड बर्निंग तो डेफिनेटली वुड बी योर आंसर. वॉल्केनोज वो भी रिलीज करते हैं. सिगरेट्स, यस. अब क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो डीजल और पेट्रोल, ये दोनों के दोनों आपके पास आएंगे ही आएंगे. तो ये तो है. एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा, थोड़ा सा नीचे करिए. हाँ, एक बस बस थोड़ा ऊपर. तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बिल्कुल है. टोबैको स्मोक बिल्कुल है. वुड बर्निंग ये भी बिल्कुल है. ठीक है. यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ पॉलीयूरिथेन. पॉलीयूरिथेन.
Indoor air comes from products, fuel such as coal, wood, gas, also led to high benzene concentration, is used majorly into applications, soft furnishings and insulations, thermal decompositions. ठीक है. Let me check this question बेटा एक बार मैं देखूं. Varnished wooden furniture. Meaning of varnished wooden furniture. ओके ठीक है बेटा. वार्निश्ड बेसिकली वो होता है बेटा कि एक तरीके की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो हम लोग कई बार जब लकड़ी में आप लोगों ने देखा होगा पॉलिश वगैरह जब करते हैं. सो वार्निश्ड जो आपके पास प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ना, तो इट स्पेशली कई बार क्या होता है कई सारे सॉल्वेंट्स के साथ अगर उसको ट्रीट करते हैं तो इट कैन रिलीज बेंजीन इन द एयर. एब्सोल्युटली. और पॉलीयूरिथेन से भी बेंजीन आपका रिलीज हो सकता है. तो यस, ऑल 5 हेयर शुड बी करेक्ट यूजिंग. बट बेटा एक सेकेंड. यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर. अब जब वार्निश्ड वुडन फर्नीचर की हम लोग बात करते हैं तो भाई ये रिलीज कब करेगा, मतलब सिर्फ यूज करने से हो सकते हैं, या अगर मैं इसको बात करूं आपसे कि भाई कोई वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने अगर पोर किया उस वुडन फर्नीचर के ऊपर जिसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग पड़ी हुई है, उस केस में वो रिलीज करेगा ना, रादर देन नेचुरली ये अपने आप रिलीज करेगा. वहां पे सिंपल से लिखा हुआ है कि भाई यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर. तो वार्निश्ड वुडन फर्नीचर अपने आप तो रिएक्ट करने से रहा. वो रिएक्ट तब करेगा जब किसी तरीके का वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस प्रोटेक्टिव कोटिंग के बीच में कोई रिएक्शन होगा. तो अनटिल अनलेस इट्स रेगुलर तब तो मुझे नहीं लगता. तो मेरे हिसाब से तो बेटा द करेक्ट आंसर शुड बी 1, 2 एंड 3 उस सिनेरियो में. ठीक है. यस. ओके. फाइन. ओके. अर्थ ओवरशूट डे. यार अर्थ ओवरशूट डे बेटा बहुत सिंपल सा है. ओवरशूट यार जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना हमको दे रहा है कंटेक्स्ट. ओके डॉली, आई कम ऑन टू इट. ठीक है. जितना यार हमको नेचर ने दिया है, जितना हमको इकोलॉजी ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, हम वो तो सारा का सारा यूज कर ही रहे हैं. रादर हम लोग और ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, और ज्यादा हमको चाहिए, यानी कि ह्यूमन नीड इज नाउ टर्निंग इनटू ह्यूमन ग्रीड. उसी के रेफरेंस में जो अर्थ ओवरशूट डे है इसको हम लोगों ने मनाना शुरू किया है. ठीक है बेटा. आई थिंक जुलाई में पड़ता है शायद 29 जुलाई को. आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेना. डेट प्लीज यू कैन चेक. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन. इट मार्क्स अ डेट. प्लीज यू कैन राइट डाउन. द अर्थ ओवरशूट डे मार्क्स द अर्थ ओवरशूट डे marks a date in the year when humanity's demand for ecological resources and services given exceeds what earth can regenerate. अब ये होता क्या है कि बेटा लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 29 जुलाई या 1 अगस्त को पड़ा था यार. आई थिंक एक बार इसको चेक कर लेना. आई एम क्वाइट कंफ्यूज अबाउट. हाँ ये आई थिंक 1 अगस्त को पड़ा था ये.
सो ये होता क्या है ना बेटा कि मतलब बेसिकली ये देखता है कि एक साल में जितना कंजम्पशन किया है हमने, क्या अर्थ उसको एक साल के ड्यूरेशन में उतना ही रीजनरेट हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग कंजम्पशन हम लोग करते जा रहे हैं और रीजनरेट करने के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे। सो दिस इज द आइडिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ठीक है डॉली सर, वाइल्ड लाइफ क्या बेटा? या एवरी ईयर डेट चेंजेस, यस। It's not it's not a fixed date, it's not a fixed date beta. Okay, हाँ वो भी है बेटा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, वही तो यूसेज के रेफरेंस में तो बात हो रही है यहाँ पे। जितना आपने यूज किया, यूटिलाइज किया एक साल के अंदर, डज द अर्थ हैज द कैपेसिटी दैट इट कैन फुलफिल और इट कैन रीजनरेट, ये उसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। Fine, sir, the Wildlife Protection Act context and important points for pre. Dolly, we have discussed the Wildlife Protection Act, although चलो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। Wildlife Protection Act 1972 पहली बार, and initially there were a total of 5 provisions that were discussed. Okay, I think Dolly you missed the PYQs class, उसमें मैंने इसको लिया था, दोबारा से देख लेते हैं। So the schedule 1, it primarily speaks about what? It speaks primarily about the endangered species, endangered category of species that have been kept in the schedule 1. यानी कि no hunting, no killing, किसी भी provision कोई allowed नहीं है आपको। endangered species, critically endangered species, वो सारे उसमें आएंगे। Schedule 2, यहाँ पे बात होती है species that are of great importance, but they are not endangered, okay, but they are not endangered, यानी कि threatened category में तो है but endangered नहीं है, यानी कि vulnerable वाला हो सकता है। enjoys a safety standard, again killing is not required। ठीक है। Schedule 3, the big game species, वो species जिनकी hunting allowed तो है, जैसे बड़े आपके पास डियर हो गए, बारहसिंघा का रेफरेंस हो गया, वो स्पीशीज हु आर बिगर इन साइज, बट हंटिंग भी उनकी अलाउड है, बट आपको उसके लिए प्रायर लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी। दे आर ऑल्सो नोन एज द बिग गेम स्पीशीज। फोर्थ आर द स्मॉल गेम स्पीशीज, छोटी छोटी, जैसे कि आपके पास यू हैव द रैबिट्स, यू हैव जंगली खरगोश जो होता है आपका, यू हैव द फॉक्सेस, इनको मारने के लिए ये होता है आपकी स्मॉल गेम स्पीशीज। Schedule 5, it talks about the vermins। अब वर्मेंस क्या है? वर्मेंस वो जिनको मारने में कोई रोक नहीं है, जैसे कि फ्रूट बैट हो गया आपके पास, रोडेंट्स हो गए आपके पास, ठीक है, फ्रूट बैट्स है, रोडेंट्स है आपके पास, क्रोज है, कॉमन क्रोज है आपके पास, सो यू कैन किल देम। और Schedule 6, it specifically talks about द प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज का मतलब भाई आप सारे के सारे पेड़ों को अपने घर में अपने डोमेस्टिक यूज के लिए आप उनको ग्रो नहीं कर सकते हो। कई सारी प्लांट्स हैं जिनको उगाना इज अ क्राइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया ना, अगर ऐसा अलाउ कर देंगे कि हर एक वेराइटी ऑफ प्लांट इज अलाउड, तो भाई हिंदुस्तान के कई सारे घरों में लोग देखेंगे कि मैरिजुआना ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज नॉट परमिसेबल इसी वजह से। ठीक है ना, तो ये है डॉली, 6 रेफरेंसेस हैं, पढ़ लेना। मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट डॉली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2022। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम the number of schedules they have been reduced from 6 से उसको घटा करके 4 कर दिया गया है। एंड ऑल्सो वी हैव रिमूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मेंस फ्रॉम इट। ठीक है, श्रुति इज आस्किंग certain terms related to ecology like wet bulb temperature, grasshopper effect, grass hushing, etc. Any other terms you which might be important according to you, sir? नहीं श्रुति, you know बेटा जो रेफरेंसेस है ना, आई डोंट थिंक कि नाउ यूपीएससी वुड बी फोकसिंग अ लॉट ऑन डेफिनेशंस। अगर कोई नई डेफिनेशंस आई हैं अगर आपके पास, ओके, तब डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक कि इस तरीके का कुछ ऐसा है। बाकी एनवायरमेंट वगैरह में जैसे हम लोगों ने देखा था ना, एक कंटेक्स्ट देखा था, ग्रीन वॉशिंग, एक कंटेक्स्ट हम लोगों ने देखा, तो इफ न्यू टर्म्स लाइक दैट आर इंट्रोड्यूस तब तो बिल्कुल उसको ठीक है, बट बाकी आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा कोई वो रहेगा। ठीक है, इट विल वर्क, इट विल सफाइस अकॉर्डिंगली, राइट। और पूछो क्या है, क्या क्वेरीज हैं? एनीथिंग गाइस, एनीथिंग दैट यू पीपल हैव टू आस्क प्लीज।
एक बार को श्रुति व्हाट यू कैन डू ना बेटा, जो ट्रेडिशनल टर्म्स है ना, एक बार आप उसको भी रेफर कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज हो सकता है कि दे माइट नॉट आस्क दिस थिंग, बट हाँ जो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं उनकी यूटिलिटी उनके रेफरेंसेस में दे कैन आस्क यू समथिंग, तो या श्योर। ओके ठीक है, और बताइए क्या बेटा? हाँ एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट, रेडियो एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरी चीज पूछ सकता है कि भाई एप्लीकेशंस अगर कोई मिला है, ओके जैसे कोई रेयर अर्थ एलिमेंट अगर हम लोगों को देखने को मिला है, सो व्हाट इज द यूटिलिटी, लोकेशन उसकी क्या है, व्हाट इंपॉर्टेंस इज इट ब्रिंगिंग टू द इकोनॉमी, या जैसे हम लोग बात करते हैं थोरियम हो गया आपके पास मोनोजाइट सैंड के फॉर्म में, सो इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस स्पेशली पर्टेनिंग टू इंडियाज जो एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो अगर ऐसा कोई एनर्जी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है या ऐसी कोई इकोनॉमी में बूस्ट हम लोगों को देखने को मिल रही है, देन डेफिनेटली यू कैन स्टडी अबाउट दैट। नेक्स्ट पूछिए कुछ और। निखत, कृष्णा, प्रथम, मनन, अभय, श्रुति, गीता, डॉली, शिवम, अदिति, ऋषिकेश, केटी, वैभव, अक्षय, उत्कर्ष, स्वागतिका, काजल, ऋषिकेश, पंकेश, शिवा, तेजस, अमिशा, सौम्या, प्लीज। ओके पूछो बेटा प्लीज, जो भी क्वेरीज हैं छोटी बड़ी जो भी है, आई टेक ऑल ऑफ देम, प्लीज प्लीज आस्क गाइस। बांको कन्वेंशन का रेडिएटिव एलिमेंट्स। क्या बेटा? बांको कन्वेंशन का रेडिएटिव एलिमेंट्स। ओके ठीक है, तो इन द से रेडिएटिव एलिमेंट्स के लिए आई एम नॉट एबल टू गेट दैट बेटा, एक बार प्लीज आप दोबारा से बताओ, मेरे को लिख करके बताओ। शिवा आपका ऑडियो ना बहुत डिस्टर्ब आ रहा है बेटा, मेरे को लिख करके प्लीज आप लिख करके पूछो, ठीक है ना? ओके फाइन। सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बेटा प्राइमरली यूएन बेस्ड, सॉरी यूएस बेस्ड फेडरल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और विद अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। Objective is to support the various initiatives that would actually aid the protection of human health and of the environmental health, ठीक है, उसको लेकर के इसको बनाया गया है। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1970 के आसपास इस इनिशिएटिव को हम लोगों ने लॉन्च करके रखा हुआ था। सो यू कैन प्लीज लिख लो अगर लिखना चाहो थोड़ा सा। द EPA, the Environmental Protection Agency, the Environmental Protection Agency established in 1970 is an initiative of the US federal government, with an objective to protect the human and the environmental health. अब EPA क्या करता है बेटा, अलग अलग रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या रूल्स हैं, किन किन प्रोडक्ट्स को आपको बनाना है, किन किन पॉल्यूटेंट्स का आपको ध्यान देना है, कि आपको इस चीज के ऊपर भी फोकस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई डिफरेंट काइंड ऑफ POPs या किसी भी तरीके के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके के सब्सटेंसेस आपके आ रहे हैं, राइट। ये सारी चीजों के ऊपर चेक, किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल रिलीज अगर हो रहा है कैसा भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हो सकता है ना कि कोई लीकेज अगर आपके पास हो जाए, तो हाउ इंडस्ट्रीज आर वर्किंग अपॉन their mechanism, their safety mechanism, so that
in case of leakage, how exactly are they going to deal with it? यानी सेफ्टी मेजर्स, अकाउंटेबिलिटी, वो सारे के सारे प्रोविजंस तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो इन सब की है। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, फायर डिपार्टमेंट बना हुआ है, यानी कि किसी भी बिल्डिंग में जो कमर्शियल पर्पस के लिए है उसमें अलग अलग हम लोग देखेंगे कि भैया सेफ्टी एग्जिट्स होने चाहिए, सेम एग्जिट और सेम एंट्री पॉइंट कभी भी नहीं होना चाहिए, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए, हर जगह पर आपके पास वो वाटर जो छोटे छोटे जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो लगे होने चाहिए, वाटर पाइपलेट्स। तो ये क्या होते हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। उसी तरीके से ये जो ईपीए है वो भी यही काम करता है। ईपीए ऑल्सो डज द सेम थिंग। वो क्या करता है? वो डिफरेंट रूल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या पोल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं, किन किन तरीके के पोल्यूटेंट्स को हमको रिलीज होने से रोकना है, वो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, एब्सोल्युटली प्रथम बिल्कुल पढ़ सकते हो। इनफैक्ट 3 ग्लेशियर्स हैं यार। इनफैक्ट अभी यार सबसे रिसेंटली तो अभी 3 दिन पहले एक ग्लेशियर जो है वो नेपाल में वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। सो यस, देयर आर इनफैक्ट अभी तक इन द रिसेंट टाइम्स 3 glaciers. You can please write down 3 glaciers. Three glaciers in the world have been disappearing, have been disappearing. Have been disappearing. The most recent one to disappear, most recent one to disappear is in Nepal, is in Nepal. Whereas in 2014, Okjokul Glacier in Iceland became the first glacier to be declared dead. The Humboldt Glacier in Venezuela, also met with the same fate. And the Yala Glacier in Nepal, and the Yala Glacier in Nepal is the most recent. Most recent to join the list. Is it important to remember data for free? हाँ निखत बिल्कुल है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेफर कर लोगे तो अच्छा है, दे माइट आस्क यू दैट थिंग। वेलकम बेटा। Anything else, guys, please? Anything, people? अप्रोच अपनी यार देखो, पता प्रीलिम्स के लिए एक मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अब देखो बहुत ज्यादा 25 25 को है ना पेपर, 25 की 26
ओके 25 मई को। फाइन, देखो नाउ यू हैव टू डू नथिंग मच, सिंपल से यार अपना वॉट एवर यू हैव स्टडीड ना, ओके जितनी भी चीजें हैं एक फोकस अपना अच्छे से रखो, प्राइमरली एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कुछ आपसे नहीं पूछेगा जो जिसका कंटेक्स्ट आपको पता नहीं होगा, पूछेगा बेसिक चीजें होंगी, एंड आई एम श्योर यू गाइस आर कैपेबल एनफ दैट यू कैन हैंडल दोस थिंग्स। एनवायरमेंट के रेफरेंस में और बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखो। लास्ट ईयर के जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ग्रैप डिस्कस किया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब इस तरीके के जो इवेंट्स हैं जहां पर UNFCCC, अब फॉर एग्जांपल देखो, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम क्या था बेटा, हमारे पास टाइम बहुत कम था और वी बेयरली हैड 8-9 डेज। अब जैसे एक मैं आप लोगों को एक रेफरेंस बताता हूं, जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो आई एम श्योर आप लोगों ने यूनेस्को की हेरिटेज साइट सुनी होंगी, बट एवर हर्ड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स नहीं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कभी सुना है? अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो अगेन दे आर इन गुड नंबर्स। अब इन्हीं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में से एक साइट को लेकर के दिसंबर जनवरी में इंडिया में बहुत बवाल हुआ। बवाल क्यों हुआ? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को माइनिंग राइट्स दिए हैं इन वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स दैट इज प्रेजेंट इन तमिलनाडु। ठीक है, उसी हिसाब से एक चीज और आई आपके पास, इंडिया में पहला स्टेट बन गया है केरला जिसने अपना जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डेटा है उसको रिलीज करना शुरू किया। यानी कि इन वन पर्टिकुलर स्टेट हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, कितने टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो आप जर्नल अपना कह सकते हो वो उसने रिलीज किया पहली बार। अब ऐसी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये होता है आपका डेटा। अब वो डेटा वहां पे वो पूछेगा, स्टैटिक जो है वो तो है ही है आपके पास, स्टैटिक के अलावा जो डेटा का रेफरेंस है ना थोड़ा उसके ऊपर फोकस करो। एनवायरमेंट को लेकर के किसी भी जगह पर कोई बड़ा इनिशिएटिव, अब जैसे फॉरेस्ट कवर की बात हुई तो भाई रिपोर्ट्स जो भी आई हैं आपकी, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं और अगर नया डेटा अवेलेबल हुआ है, अब जैसे फॉरेस्ट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट सर्वे इज वेरी की, सो आई कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट की, एक क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले। अब आपने इंडिया का तो फॉरेस्ट सर्वे आपको मिला ही मिला, इंडिया का तो फॉरेस्ट सर्वे हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया ही है ना। एक चीज आप और देख लीजिएगा, जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दैट टू रिलीजेस द ग्लोबल डेटा, वो ग्लोबल डेटा रिलीज करता है। द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस अ ग्लोबल डेटा ऑन द फॉरेस्ट्स। उसमें टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 पर है आपके पास आई थिंक चाइना, नंबर 2 पर है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पर है इंडिया जिसका फॉरेस्ट कवर लगातार बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, या एग्जैक्टली वैभव, एग्जैक्टली। तो करना क्या है आपने, हम सबने फोकस ऐसे टॉपिक्स के ऊपर करना है। नया टर्म कोई भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, भाई रेफरेंसेस, चीजों को क्या करो, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करना। वहां पर लोकेशन अगर होता है ना, कई बार लोकेशन को लेकर के पूछ लिया, हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन लोकेशन को लेकर के भी पूछे हैं, तो मैंने क्या करवाया, मैंने बोला ना वहां पे आपसे बोला हुआ है कि भैया एक ऐसा एक सलाइन रीजन में, एक सैंडी रीजन में, तो आपको बोल रहा सैंडी और सलाइन कॉम्बिनेशन है, तो सैंडी और सलाइन कॉम्बिनेशन अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता, सो बेटा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू ब्रेक इट डाउन कि भाई पॉसिबल लोकेशंस कहां पे हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया, दैट वाज रिगार्डिंग पीटलैंड्स। अब वहां पर एक ऑप्शन देकर के रखा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। यार सबसे पहली बात, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई अगर आपको एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल चाहिए तो एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन है दैट द डिपोजिशन मस्ट हैव बीन
एटलीस्ट 350-360 मिलियन ईयर्स अगो। और साथ ही साथ जो डेपोजिशन है वो भी कोई नॉर्मल उसका नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का। अब अगर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं सो पॉसिबिलिटी हाई किसकी होगी, एंथ्रासाइट की। अब मैं पीटलैंड अमेज़न वाले रीजन में कैसे मिल सकता है मेरे को, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी वहां पर। ट्राई टू गो फॉर, एक काम कर दीजिए, एक गूगल सर्च कर दिएगा स्पीशीज इन न्यूज इन इंडिया या फिर ग्लोबली। पहले इंडिया के रेफरेंस में देखिएगा व्हाट आर द स्पीशीज दैट आर इन न्यूज, चाहे वो हो सकता है क्रिटिकल। अब तुम सोच रहे होगे कि IUCN की वो जो रेड डेटा बुक है उसमें 1000 से ऊपर स्पीशीज के नाम दिए हुए, सबके स्टेटस याद कर लूं तो तुम गधे हो। ठीक है, याद रहेगा नहीं, भूल अलग जाओगे और कंफ्यूज करके अपने 2 4 8 10 हो सकता है मार्क्स जो है तुम गंवा दो। डोंट डू दिस थिंग। अगर किसी, भाई देखो, कोई भी स्पीशीज जो तुमको मिले इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर पूछा हुआ है, कुछ नहीं, तुमको 2-3 चीज जो फोकस करनी है, उसका स्टेटस क्या है इंडिया में। नंबर 1 स्टेटस, नंबर 2 शेड्यूल 1 में है कि शेड्यूल 3 में है कि शेड्यूल 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल के अंदर वो आ रहा है, ये नंबर 2 तुम्हारे पास। IUCN स्टेटस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का स्टेटस। और तीसरी चीज, अगर भारत में पाया जाता है, इफ यू फाइंड इट इन इंडिया, तो इंडिया में किस जगह पर वो होता है। ओके, इंडिया में कौन सी जगह पर होता है। अब जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, प्लीज नेम मी द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने, जिसने, हमारे यहां पे एक प्रैक्टिस है, मतलब बड़ी घटिया प्रैक्टिस है, आज भी है। ओके, शेम ऑन ह्यूमैनिटी के रेफरेंस में मैं इस चीज को यही बोलूंगा आपसे, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी जगह पर, आप लोगों ने देखा होगा कि गटर क्लीन करने के लिए बंदों को खुद उतरना पड़ता है बेचारों को। ओके, यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग, राइट। अब दिस इज कॉल्ड एज मैनुअल स्कैवेंजिंग। नाउ फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने रोबोट्स का इंप्लीमेंटेशन या रोबोट्स का एप्लीकेशन स्टार्ट किया है फॉर द क्लीनिंग ऑफ दीज मैनहोल्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोबोट। पहला इंडियन स्टेट कौन सा, नंबर 1, और दूसरे नंबर पर व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोबोट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, नाम है बांदीकूट। ओके, और स्टेट है केरला। अब एक बात समझो, या एग्जैक्टली डॉली, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पर रेफरेंसेस हमारे पास अभी चीज थी। अब आपको लगेगा कि यार ये बहुत रैंडम सी चीज है यार, बट रैंडम नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ बिग इशू। ओके, अब यहां पे ही हम लोग बात कर सकते हैं किसको लेकर के, बाय डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस दैट आर रिलीज्ड, कि भाई जो मोस्टली जो लोगों की जो डेथ होती है, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हु डाई, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मैनुअल स्कैवेंजिंग से, मैनुअल स्कैवेंजिंग या गटर्स साफ करते टाइम कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द गैस दैट इज रिलीज्ड। ओके, नाम बताइए उस गैस का। गैस का नाम बताइए। 2 बहुत प्रोमिनेंट, इनफैक्ट 3 बहुत प्रोमिनेंट गैस होती है। NH3 वैभव नहीं यार, अमोनिया ना वैभव, नॉट अमोनिया। पहली मीथेन, दूसरी, बट मीथेन स्टिल, मीथेन से बचने के चांसेस हैं। दूसरी जो सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, सो पहली मीथेन, दूसरी हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ना वही है बेटा आप लोगों के लिए कि प्लीज टॉपिक्स को, जैसे हम लोगों ने COP पढ़ा, COP 29 पढ़ा, COP 16 पढ़ा, अच्छे से बेस क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, आगे पीछे जो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करो।
इन द रिसेंट आपके अराउंड एनवायरमेंट को लेकर के अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है, काइंडली गो थ्रू इट। ये चीजें ना बेटा आपका पेपर क्रैक करवाने में बहुत हेल्प करेगी। बाकी तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू टू राइट द मेन्स, appear for the interview and your name must feature in the final list. Okay, this is what I desire for all of you. ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना लॉजिकली पेपर को बेटा थोड़ा सा अप्रोच समझो। ओके, एकदम वो मतलब घोड़े की तरह वाला अप्रोच है वो तो एकदम सही है, बट गधे की तरह मेहनत नहीं करनी। सिर्फ हम लगे हुए हैं जी, क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कई सारी चीजें होती हैं दैट कैन बी क्रैक्ड विद द कोड, जस्ट ट्राई टू फॉलो दैट अप्रोच। ओके, चलो गाइस, सो हाँ बेटा यार, नॉट विद रेफरेंस टू द प्रीलिम्स, विद रेफरेंस टू मेंस डेफिनेटली बेटा, ठीक है। चलो गाइस, फिर विल मीट यू सम अदर टाइम, होपफुली फॉर द मेंस प्रोग्राम। डेफिनेटली आप लोगों से मिलेंगे। अबे बिल्कुल यार, देख सकते हो यार, अभी तो अब रहने देना, अब 25 के बाद ही देखने की कोशिश करना। बाकी सजेशंस और कुछ चाहिए तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस हैं, वो मैं डेफिनेटली दे दूंगा, ठीक है, राइट। तो नेटफ्लिक्स के बहुत तगड़े तगड़े सजेशंस हैं मेरे पास, तो बिल्कुल पर्सनली मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। ठीक है गाइस, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड with how our session went. I hope all of you enjoyed the sessions very well. और मैं चाहता था यार और ज्यादा टाइम स्पेंड करें यार, और ज्यादा चीजों को इंफॉर्मेशन और ज्यादा बेहतर बड़े सेशंस हो, जहां पे थोड़ा सा और अच्छी चीजों को और अच्छे तरीके से आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर सकें, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज डेफिनेटली आई वांट ऑल ऑफ यू टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, you can contact me further. Okay, what I'll do is I have I'll share my telegram channel link with sir will share it with you all. Okay, so एक मेरा छोटा सा telegram channel link है, so I keep on posting some kind of information there. So what I'll do is I'll share that link with the sir, और सर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे उसको, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर होती है किसी भी तरीके की, so you can contact sir, तो वहां पे तो वो है, ठीक है। बाकी तो दिस इज व्हाट आई यूज, ओके, ठीक है। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, राइट। तो बाकी जहां पे भी आप लोग कोई दिक्कत होगी, पक्का आई विल बी ऑलवेज देयर विद यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। एक मेरी कोशिश रहेगी कि वंस योर प्रीलिम्स इज डन, एक सेम डे एक जो होगा ना ज्योग्राफी और प्रीलिम्स का ना, क्या क्या क्वेश्चंस रहे, व्हाट शुड बी, मतलब आंसर कीज तो आ ही जाएंगी, बट एक वो डिस्कशन लेवल पे छोटा सा, मतलब 1 घंटे का सेशन मेरी है चांसेस। लेट्स सी हाउ माय अवेलेबिलिटी वर्क्स दैट डे, तो फिर पक्का, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, थैंक यू गाइस, ठीक है, थैंक यू।